also have this tradition of remembering my teachers, some of them in the college, some of them later in life. But these are the people who have created such strong impressions on my mind. And through that, to other teachers that I get to see here, to them, I would want to tell them that you do an amazing job. Please ensure that that you, when you teach your students, it is only a job half done. But when you inspire them, that is when it takes them to the next level. So with this, let me try and tell you how do I intend to take the discussion today. Biotechnopreneurship opportunities for Viksit Bharat. Now there are a number of titles, a number of words out there. One is, of course, biotechnopreneurship. As you can see, it is a hybrid term. It has biotechnology in it, but it also has entrepreneurship in it. And you also get to see R mark, सर which वो stands for हाइड, वो जो लाइन आ रहा है ना नीचे, स्टॉप शेयरिंग एंड हाइड, उसको तो क्लिक कर दीजिए, हाइड, तो इट विल नॉट कवर. यस यस सर, थैंक यू. So biotechnopreneurship is a hybrid term, but as you can see, it is a word mark and trademark of Government of Gujarat taken by GSBTM, and it shows, it reflects the resolve of the state government to promote biotech entrepreneurship, which is why I chose this topic today. The second important term out there is opportunities. So आपको ये पता चलने वाला है कि कहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं. And then, of course, Viksit Bharat at 2047. What a beautiful thought that has been given by our Honorable Prime Minister. I'm sure उनके जगह पे आप होते प्राइम मिनिस्टर तो भी एक ऐसा सपना जिसके लिए हम लोग, अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस होते तो शायद उसमें कंट्रीब्यूट कर पाते. लेकिन आज जब हम लोग इंडिपेंडेंट है तो हम क्या सपना देखें? हम ये ना देखें कि हमारा कंट्री जो है, हमारा नेशन एक डेवलप्ड नेशन बन जाए. So this is a topic that I have chosen out here, and it is with this objective. Um, uh, Let me go ahead. I have put in some keywords out there like entrepreneurship, like problem solving, like innovation commercialization and research commercialization. But through that, I want to, this explains the kind of canvas that I want to spread onto. How to start, what are the government support systems that are available. So how do I plan to go ahead? I plan to first talk about what is biotech entrepreneurship. How will the world be in 2047? Vis-a-vis, how will India be in 2047? Um, what is the nation that we are dreaming of in 2047? I'm hopeful I'll be alive, hopefully, and I'm sure a lot of you will be working and doing, calling shots. कोई बहुत बढ़िया पॉलिसी प्लानर होगा, तो कोई बहुत उम्दा साइंटिस्ट होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा. But we as a nation would like to be an economic leader by then. So I want to talk about that, but I also want to talk about how is biotechnology a tool of hope. जब हम as a nation, we want to be a developed nation, where is the role of biotechnology in that? And I am trying to say that biotechnology as a tool, at that point of time, a tool to make the nation a developed nation is going to be important. And how do biotechnopreneurs impact? Biotechnopreneurs ऐसा तो क्या करते हैं कि जिससे जो है बायोटेक्नोलॉजी ऐसा एक a tool of hope, a leveler tool, a tool of socio-economic upliftment ऐसा देखा गया है. तो इन सब की मैं थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूंगा. And then I will quickly want to also talk about various support systems that are available from the government's end across the value chain, maybe for commercializing innovation or commercializing research. I see with amongst the participants, I also saw Mittalji is also there. He works in innovation commercialization space. I see a number of other people. So I'm sure, and I also see people who might eventually join industry and eventually influence industry captains as to what they could do. So these are some number of things that I have put in.
I will also like to share with you the benefits that the organizations that I come from, it brings you. So, and I'll be open for questions. So in next, I'll try to, in next 30-40 minutes, try and cover up as much as I can, and then leave the rest of the time for discussion. So before I go ahead, I'll request all of you to kindly join me on this. You can either go to menti.com and use the code, or you can scan this QR and let me, yeah. Okay. So there, let us go for the first question. And what is that? What, in your opinion, is entrepreneurship? Let me see. I think we'll go for 30 seconds time. Okay. I hope you aren't having difficulty in logging. Yes, sir. Can you give that link in chat box if there is any URL link? Okay, I'll go back and it is here. Okay. Okay. Menti. Yeah. It is also here at the top. Second thing, people have joined with mobile, so it's difficult for them to scan, I think. No problem. No problem. So what I'll do is I'll miss this out, and okay, I see now you are able to give this kind of responses. I see 4 responses out there, but I'm sure there are more people. Yes. Okay. And nevertheless, let me go to the next slide. I'll come back to this question as to what do you think is this. So here is the question on the next slide, which asks you, in your opinion, what is the most important element of entrepreneurship? And do I fix in any time? No, let us go ahead. You can. So you can put in one word or 2 words at max as to what is the most important element of entrepreneurship, like making, okay, creating opportunities. Fantastic. That is the first response I have. Okay. Knowledge, idea, funding. Fantastic. Yeah. Okay. But this is where I want to come in and tell you that the most important element of entrepreneurship, okay, future need,
is yes, in a way. Everything it addresses: validation, yes; creativity, funding, true. So the most important part is solving a problem or giving a solution, okay, for a future need or for something that is futuristic, right? So with this, let me go back to my slides and try and tell you um, who is the one who's able to solve questions. When I say biotechnology, so please do not create barriers amongst yourself as to मैं तो microbiologist हूँ, मैं तो biochemist हूँ, because biotechnology is no one field. It involves a large number of fields, and as you can see, a large number of streams that come together. Eventually, you have to solve a problem. Okay, so biotechnology encompasses all of these, provided you are solving a problem. Okay, so I'll quickly take you through the kind of uh, people, the solutions that they have come up with. For example, agriculture biotechnology, you have people who have worked on nutritional security, you have people who work on various species engineering, development of genetically modified seeds, biofertilizers, and biopesticides and genome mapping and stuff. Okay, there have been people who have been working on molecular breeding and so on, crop biotechnology. There is a whole long list. Environmental biotechnology. This is something I'm sure you would have had number of other people speaking on to it. मैं सिर्फ ये कुछ वर्ड्स आपको याद दिला रहा हूँ ताकि बायो प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ बायो इंडिकेटर्स, बायो सेंसर्स, फाइटो रेमेडिएशन, तो ये सब से जो है ये अलग अलग फील्ड्स में ऐसे काम हुआ है. और मैं ये कुछ एक जो कंपनीज एलेम्बिक है, अम्बालाल साराभाई, India's first bio company was Alembic in 1908. Okay, 1908, 1909 में ये शुरू हुई थी. आज 100 से अधिक साल हो गए हैं इसको. हेस्टर फार्मास्यूटिकल्स के नाम से शुरू हुआ, फिर आज हेस्टर जो है अलग नाम से, लेकिन हेस्टर के नाम से बहुत लोग जानते होंगे, एनडीडीबी वगैरह. सो ये सारे हैं. मरीन बायोटेक्नोलॉजी जैसा फील्ड भी बहुत विरला है, where you have antivirals, anti-inflammatory, anti-tumor, anti-cholesterols, antibiotics coming from marine sources, various enzymes, bioremediation. But why am I telling you all of these? These are different branches. But again, coming back to this, what in your opinion, next question is here, which sector or branch do you think is most likely to be in vogue in coming times? आप बताइए, क्या लगता है आपको कि हेल्थ केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एग्री बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मरीन बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, या क्या ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को हम बोल सकते हैं कि ये वाला सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है? बताइए. You can put in again small words and we'll see what comes up over here. And you will also be able to vote for whatever. मान लीजिए डॉक्टर गोपाल जी ने कोई एक फील्ड बोल दिया तो बाकी लोग जी, ड्रग डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पिछले 45 to 50 years, 45 plus years, we have not been able to come up with a new antibiotic. Okay, this is a penury, right? बिल्कुल सही. ड्रग डिस्कवरी, प्रिसिशन मेडिसिन. और बताइए. Anything that impacts environment and sustainability. Yes, very true. Very, very true. Environmental remediation. Okay. Okay. So when we are thinking of Viksit Bharat of 2047, what are the things that you think will be in trend, will be trending, or will be in fashion? Okay. So let me move ahead and come to the next slide out there. Okay, maybe I'll go back to
this slide and now take you through, if we look at slight past and then see how's future, we might be able to, like in, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपको मालूम होगा ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, जब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और फिर हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका ट्रैजेक्टरी कैसा है। तो थोड़ा सा पास्ट में देखें और देखें जैसे सिबाका गीतमाला में टॉप 10 सॉन्ग्स आते हैं, टॉप 20 सॉन्ग्स आते थे, आजकल पता नहीं रेडियो मिर्ची पे आते हैं। तो वैसे देखें तो टेक्नोलॉजी इज टॉप 10 ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू देता है। और इसमें देखें तो ये जो है 2007 से थोड़ा सा शुरू किया है, 15 सालों का। तो आप देखेंगे टॉप 10 में एटलीस्ट 3 ऐसे टेक्नोलॉजीज देख पा रहे हैं आप कि पर्सनलाइज्ड मेडिकल मॉनिटर्स हो, सिंगल सेल एनालिसिस हो, नैनो हीलिंग वगैरह हैं जो बायो से रिलेटेड हो। 2008 में 8 में से 2 एक सेल्यूलरिटिक एंजाइम्स हैं, चाहे कनेक्टोमिक्स हैं, चाहे 2009 में अगेन 3 ऑफ देम, $100 जीनोम, बायोलॉजिकल मशीन्स, पेपर डायग्नोस्टिक्स, फिर इंजीनियर्ड स्टेम सेल्स 2010 में आया, सोलर फ्यूल आया, ड्यूअल एक्शन एंटीबॉडीज आया, इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आया जो सिल्क वाला जिससे होता है। इन 2011 5 ऐसे टेक्नोलॉजीज आए। ओके, 2012 में भी 2 आए, 2 आउट ऑफ टॉप 10 यू गेट टू सी बायोलॉजी के रिलेटेड। हर साल आप देख रहे हैं 2-3 तो टेक्नोलॉजीज ऐसे आए ही हैं which are 4 in 2015, 4 out of top 10 are biotechnology based, 3 here जो CRISPR आया in 2016, immune engineering आया, DNA app store आया 2017 में, आप देखिए तो 4 आए। ओके, सेल एटलस आया, जीन थेरेपी आया, reinforcement learning आया, रिवर्सिंग पैरालिसिस आया 2018 में, और 3 आए। फिर 2019, 2020, 2021 जो एक ओर से देखा जाए तो कोविड एरा था जब हमने मैसेंजर RNA वैक्सीन्स भी देखे। 2023 में देखेंगे तो 4 जो हैं अगेन आर ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज। इस तरीके से हर साल कम से कम 3-4 टेक्नोलॉजीज ऐसे आते गए हैं। सो आई वांट टू, द फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडीड is very, very bright, and it is for this reason that biotechnology is a technology of hope. So those of you who have been thinking, Muhammad Ahmad, please mute your mic. I request everybody to mute your mic and your camera also. Close your camera. Yeah, please continue, sir. So I'm sure a lot of students who Muhammad come from Ahmad, different background, maybe biochemistry or microbiology or botany or zoology or environmental science, you would appreciate that it is not about following one particular field. Only microbiologists akele to nahi kaam kar sakte. It is a team effort that can make an impact. Okay, so with this now, I mean, I'll miss out onto videos, and but I would want to talk about this Professor Kevin Warwick, and I'm sure Dr. Gopalji will remember that the Genome Research Center was inaugurated by Professor Kevin Warwick, जिन्होंने क्या किया था। अब इन्होंने जो है अपने 4 आर्म में एक छोटा सा जो है खड्डा खोद दिया। ओके, अपने हाथ पे, अपने लेफ्ट आर्म के जो है 4 आर्म पे उन्होंने जो है एल्बो के बाद और रिस्ट के पहले एक खड्डा खोदा और उसमें उन्होंने इस टाइप का एक इलेक्ट्रॉनिक चिप अंदर डाल दिया। ओके, और उधर से उन्होंने नर्व सेल्स के साथ कनेक्ट करवाया, एंड देन ओनली बाय हिज थॉट ही कुड मेक एन इम्पैक्ट। he could turn on lights, he could turn off lights, he could move a wheelchair. And then कमाल तो तब हुआ जब उनके बीवी ने भी इस तरीके का चिप अपने बॉडी में डाल लिया, and transatlantic, he was in UK, she went to US, and transatlantic they could communicate. So this is where we are heading. Okay, and those of you who are interested, you can look out for Cyborg and look at how science is proceeding. So again, coming to next component as to how do you think is the world going to be in 2047? Okay,
दुनिया कैसी होगी और मेरा प्यारा इंडिया कैसे होगा. So let us quickly have a look at how the world will be in 2047. We will have urban landscapes that will be which will have vertical gardens, which will have bioengineered trees, जो ज़्यादा CO2 ले पाएगा और ज़्यादा O2 देगा. सस्टेनेबल बायोमटेरियल से बना एक विश्व होगा. और आप देखते जाइए एनवायरनमेंट कैसा होगा. तो एनवायरनमेंट क्लीनर होगा. बायो इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है पोल्यूटेंट्स और प्लास्टिक्स ब्रेक कर रहे होंगे. जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ गई होगी. फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जिसकी मैंने अभी बात की, ये जोरों शोरों से चल रहा होगा. होपफुली हम लोग बायो एनर्जी के फॉर्म में बायो इंजीनियर्ड algae, बैक्टीरिया क्या क्या कर रहे होंगे, बायोफ्यूल्स बन रहे होंगे. सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस के साथ बायोटेक और इंटीग्रेट होके कुछ कर रहा होगा. एवरीडे लाइफ में हम लोग वेरेबल बायोटेक डिवाइसेस यूज कर रहे होंगे. बायोल्यूमिनेसेंस को हम लोग यूज कर रहे होंगे. और कुछ तो एनर्जी के हमारे रिक्वायरमेंट्स उससे हम लोग ठीक करते होंगे. एग्रीकल्चर के फील्ड में बायो इंजीनियर्ड क्रॉप्स काम कर रहे होंगे. अब अगर ये सारा करना है, और हेल्थ केयर में तो कमाल ही हो चुका होगा. हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में हम लोग जो है डायग्नोस्टिक्स करते हैं, प्रोग्नोस्टिक्स करते हैं. प्रोबायोटिक्स से हम लोग मतलब जो डिसीज के क्योर से प्रिवेंशन तक आए थे, अब प्रिवेंशन के भी आगे हम चल के कि भाई जिसको हमको लगता है कि बचा जा सकता है, उससे बचने की हम पहले से कोशिश करेंगे कि भाई मेरा इससे वल्नरेबिलिटी है तो मैं इसको पहले से ही कैसे एड्रेस करूं. तो ये एक और है. और दूसरा जो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बढ़ गया होगा. जेनेटिक प्रोफाइलिंग अलग हो चुका होगा. रीजनरेटिव मेडिसिन हुए होंगे. तो ये मैंने कुछ एक 6-7 अलग अलग फील्ड्स में देखा कि भाई ये ऐसा कुछ हुआ होगा. इंडिया में क्या हो रहा होगा तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको, ये तो मैं वर्ल्ड की बात कर चुका हूँ मोटे मोटा. तो अब मैं इंडिया की बात करूं तो दिस इज व्हाट टाइफैक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, उसने जो है ये फोरकास्ट किया हुआ है कि भाई हम लोग जो है ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड्स में ये कर चुके होंगे. अब इसमें जैसे कि हर एक पंचायत में हेलीपैड होगा. मेडिकल इवैक्यूएशन हम लोग 1 आवर में कर पाएंगे. नो इंडियन इज अंडर नरिश्ड. ऐसे सब लेकर के इन्होंने बहुत सारा बनाया है. और अलग अलग थीम्स जो बन गई हैं विच हैव बिकम द थीम्स ऑफ ग्रैंड चैलेंजेस, ये सब बना है. तो मैं इसको और आगे डिटेल में न ले जाते हुए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा विकसित भारत 2047 में ऐसा होगा. तो ऐसी सूरत में जो है हमको क्या करने की जरूरत है. तो यहां पर मैं आई वांट टू टेक अ मिनट ब्रेक एंड टेल यू दैट आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, अचानक ऑल ऑफ अ सडन देयर हैज बीन अ सेंटिमेंट अगेंस्ट चाइना एंड व्हिच हैज क्रिएटेड अ बिग अपॉर्चुनिटी. नाउ आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू हैव सीन दिस. अभी पिछले 24-25 तारीख को जो अनाउंसमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो देश कौन चलाता है, प्रधानमंत्री अकेले नहीं चलाते, कैबिनेट चलाता है. तो कैबिनेट ने एक बायो ई3 पॉलिसी जो है अप्रूव की है. अब ये बायो ई3 क्या है? तो बायो ई3 एक ऐसी पॉलिसी है विच सेज बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एंड बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो ये एक बहुत बढ़िया एक पॉलिसी अप्रूव हुई है. और इससे जो है अर्जेंट इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो सर्कुलर प्रैक्टिसेस, बायो सर्कुलर, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. और एम्बिशियस गोल्स लेकर के आए हैं हम लोग. बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, बायो फाउंड्री हब्स, बायो एआई हब्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं. जो ऐसा बायो एआई हब विच विल बी इंटीग्रेटेड विद बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो शेयर्ड फैसिलिटीज फॉर R&D एंड फॉर इंडस्ट्री हम लोग क्रिएट कर पाए. हम लोग बायो फार्मास्यूटिकल, स्मार्ट प्रोटीन्स वगैरह कुछ काम कर पाए. बायोमास जैसे वेस्ट में से हम माइक्रोबियल सेल फैक्ट्रीज तक अगर कुछ काम कर पाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाए, और इस तरीके से हम लोग बायो इकोनॉमी की ओर ले जा पाए.
जो which can become as huge as 24,000 billion INR. Okay, तो हम वहां लेके जाना चाह रहे हैं, which will contribute to 5 to 6% of India's GDP share. Okay, तो ये करने का, ये मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं, ये पिछले 3-4 दिनों में ये एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, and believe me, this is going to be a big opportunity for people in bioeconomy and hence biomanufacturing as a core area जो है. So given this, now I want to understand from you as to then, well then, how should students prepare for their careers in biosciences? Okay, when I say this, I understand primarily careers for students are either in academics or in research or in industry. Academics में चाहे वो यूजी टीचिंग करे, चाहे पीजी टीचिंग करे. ओके, आप जैसे देखते हैं डॉक्टर गोपाल जी जो है, अब दोनों ओर पढ़ाते हैं, यूजी को भी पढ़ाते हैं, पीजी को पढ़ाते हैं. यूजी को जब इंस्पायर करते हैं तो वो इसके लिए इंस्पायर करते हैं कि कुछ उम्दा अच्छा काम करे, और पीजी के लेवल पे वो स्किलिंग की एब्सोल्यूट नॉलेज, जब आज कोई बात कर रहा है कि भाई मैं डीएनए एक्सट्रैक्शन कैसे करूंगा, कैसे अच्छा काम हो, तो उसके लिए वो हैंड्स ऑन काम करते हैं. बहुत सारे टीचर्स ये काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका यूजी में पीजी में थोड़ा सा भेद है. तो आप अगर एकेडमिक्स करना चाह रहे हैं तो आप यूजी टीचिंग भी कर सकते हैं, पीजी टीचिंग भी कर सकते हैं. अगर आप रिसर्च के फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो रिसर्च जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में भी हो सकता है. और इंडस्ट्री का जो रिसर्च है वो ज्यादा ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है. आजकल जो सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में भी ट्रांसलेशनल की ओर ज्यादा फोकस है, and it is expected that you work towards translational research. You come up with applied research, you come up with some product process prototype or some patents and be able to commercialize it. Okay, आप अगर इंडस्ट्री में हैं तो आप चाहे प्रोडक्शन के फील्ड में जा सकते हैं, चाहे क्यूए क्यूसी में जा सकते हैं, चाहे रिसर्च में जा सकते हैं, चाहे मार्केटिंग या सेल्स में जा सकते हैं. ओके, इसके अलावा कुछ नए फील्ड्स है, चाहे आईपीआर हो, चाहे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो, ये सब पे हम फिर कभी बात कर सकते हैं. लेकिन लेट मी वंस अगेन टेक यू, आप लोगों को जगाने की भी तो जिम्मेदारी है ना. अभी शाम के टाइम कोई सोता नहीं है, लेकिन आई वांट टू सी योर पार्टिसिपेशन. ओके, तो I want to understand a question to students present over here. What will you like to make your career in? Okay, so tell us, what will you like? There is a beautiful response that has come up. Tailored nutrition. मतलब क्या कि जिनको विटामिन डी का डेफिशिएंसी है उनके लिए खास तौर पे हम लोग विटामिन डी, D3 का अगर न्यूट्रिशन ला पाते हैं, विटामिन ए का न्यूट्रिशन ला पाते हैं, अलग अलग जो भी न्यूट्रिशन, तो हम अगर टेलर्ड न्यूट्रिशन ला पाएंगे क्या? तो ये जो है पोल्यूशन कंट्रोल बहुत बढ़िया, कोई इसमें काम करना चाह रहा है, आप ऐसे स्पेसिफिक फील्ड भी बता सकते हैं. आप ये भी बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में करना है कि आप एकेडमिक्स में करना है और क्यों करना है. तो आप जो भी थोड़े ब्रीफ रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, बताइए. और ये इसके लिए भी जरूरी होता है कि भाई मुझको तो, क्योंकि एक तो ये गूगल मीट में ना अपना चेहरा दिखता है, ना दूसरे कौन प्रेजेंट है वो दिखता है. इवेंचुअली ये होता है कि आप एक स्क्रीन के सामने बोले जा रहे हैं, और मैं जो हूँ, मैं वो ठेठ मास्टर रहा हूँ बहुत साल कि जो स्टूडेंट सामने प्रेजेंट हो तो बात कर पाते हैं, वरना ये तो पता ही ना लगे कि लगाना पड़ रहा है टीचर को भी सर, वर्चुअल सीखना पड़ रहा है, वर्चुअल. बिल्कुल, कि सामने कोई बैठा भी है कि नहीं, तो ये जानने के लिए ये एक अच्छा तरीका है. बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर क्यूआर कोड नहीं किया हो. सो यू कैन डिस्कस इन व्हिच फील्ड यू विश टू परस्यू एनवायरमेंटल रिसर्च. लिख जी जी जी. लेकिन क्या है, मैंने क्योंकि वो फुल स्क्रीन कर रखा है ना, तो मुझको तो जी आपको नहीं दिखता होगा. जी जी जी, इसीलिए हम मोबाइल में उसको कनेक्ट कर लेते हैं या दूसरा लैपटॉप में देन दिख पाता है. अच्छा, तो हाँ, तो दोनों में दिख पाएंगे, बराबर है. चलो ठीक है, तो मैं फिर से उधर चला जाता हूँ. अनुष्का ने लिखा एनवायरमेंटल रिसर्च, विकास ने लिखा रिसर्च. अच्छा अच्छा, बट रिसर्च इन व्हिच फील्ड?
रिसर्च तो, लेकिन मैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं अब जो डॉक्टर गोपाल जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ। चलो ये तो आपने कर दिया कि आप, कई लोग जो है एमएससी करके जीआरई दे करके अब्रॉड जाते हैं, उधर जा करके फिर से एमएस करते हैं या कभी पीएचडी करते हैं, या तो उसके बाद पोस्ट डॉक कर लेते हैं, जॉब करते हैं, वापस आते हैं, अगर इमिग्रेशन मिल जाता है तो ज्यादातर वहीं तो टिक सर जाते जाते हैं। पीआर के लिए 20-25 लाख दे करके। आई डोंट सपोर्ट जनरली। और उधर जा करके जो है कई बार तो गैस छोटा स्टेशन पे छोटा काम काम करते हैं, करते हैं छोटा सर। मोटा काम करते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप एमएससी करके जॉब भले इंडिया में करें, ये करें, लेकिन अगर आप कुछ डेवलप इकोनॉमीज देखेंगे, जो हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, तो 1945 से 1948 के बीच में और ये जो कंट्रीज हैं लाइक इजराइल और साउथ कोरिया, तो आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं जाके स्टार्टअप बनाऊंगा। दिस इज वेयर आई वांट टू कम टू, कि ये स्टार्टअप वाले जो हैं, अब आई कनेक्ट टू द फर्स्ट जो आप लोगों ने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या करता है, एंड देयर आई वांट टू, ओके लेट मी टेक यू थ्रू सम एग्जांपल्स और केस स्टडीज। देखो ये 25 रुपए किलो आलू मिलता है, इसको आप चिप्स बना करके 500 रुपीज पर केजी अगर बेचते हो, तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप हुआ? भाई ये तो सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आप एक और एग्जाम्पल देखें, देखो ये भी तो चचा जो है ये चाय बना रहा है, और ये वाला चचा भी तो चाय बेच रहा है, लेकिन दोनों के बिजनेस में डिफरेंस है। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ गोरी चमड़ी वाले लोग भी दिख रहे हैं। तो ये इन लोगों का जो बिजनेस मॉडल है उसमें थोड़ा सा भेद ऐसा है कि ये फ्रूगल है, ये लेस रिसोर्स इंटेंसिव है, जबकि ये रिलेटिवली रिसोर्स इंटेंसिव है। ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इसमें लीस्ट है, टैक्स सेविंग है, ये टैक्स कंट्रीब्यूटिंग है। इसमें कस्टमर रिकॉल वैल्यू कम है, इसमें हायर है। इसमें फ्रेंचाइजी का स्कोप रहता है, इसमें फ्रेंचाइजी जो है लेस लाइकली है। अब मजे की बात यह है कि ये जो टी पोस्ट वाला है, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने शुरू किया हुआ है। ओके, अब इससे जो है ये जो टैक्स आता है, जो इधर से जो बिजनेस बनता है, ये काफी बड़ा बन जाता है। अब चाहे मैं ये कुछ एग्जाम्पल्स बताऊं कि ये एरो का शर्ट $115 का मिलता है। अब ये आपको क्या लगता है, एरो कंपनी ने अपने रोल पे अपने एम्प्लॉयज कौन दर्जी ले रखे होंगे? तो भैया ऐसा होता ही नहीं है। ओके, या रिबॉक वालों ने क्या मोची को ले रखे होंगे? तो ऐसा भी नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि ये लोगों ने जो है सारे लॉयर्स ले रखे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो शर्ट दिख रहा है आपको, $115 का शर्ट जो है, इसका कॉटन तो शायद इंडिया में बनता है या बांग्लादेश में बनता है, इसका दर्जी शायद चाइना में होता है, चाहे थाईलैंड में होता है, और इसका जो है प्रोसेसिंग, इसका जो पैकेजिंग कह लीजिए, आगे का जो है इस्त्री होके पैकेजिंग होके, इसका जो लॉजिस्टिक जो अमेजोन पे जाता है, कहीं कहीं पे जाता है, तो वो कहाँ होता है? वो सिंगापुर में होता है, कहीं पे होता है। तो अब जो $115 जो आप देते हैं जब जाके एरो का शर्ट मिलता है, तो क्या लगता है आपको इसमें से वो दर्जी को कितना मिलता है, वो जो फार्मर है जिसने कॉटन उगाया उसको कितना मिलता है, या ये रिबॉक का शू जो है तो उसके मैन्युफैक्चरर को कितना मिलता है, और रिबॉक कंपनी को कितना मिलता है? तो इधर ऐसा देखने को मिला है कि भाई $115 में से इसका जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी जो बनने की जो अमाउंट है, वो तो सिर्फ $5 है। बाकी का $110 जो है मुनाफा है, प्योर प्रॉफिट जो एरो ले जाता है। ये रिबॉक का शू जो आपको 8-9 हजार में मिलता है, इसका कॉस्ट प्राइस तो 350 से लेके 550 रुपए के बीच में है। अब 450 ले लो। तो ऐसी सूरत में जो है इसका बाकी का जो प्रॉफिट है, ये किसका रहता है? ये ब्रांड का रहता है। दिस इज वेयर ब्रांड एंड इकोनॉमिक्स वर्क। और जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी यही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तब हो जाता है जब हम लोग रिसर्च इसमें जोड़ते हैं। लेकिन अगर रिसर्च, देखो रिसर्च दो रीजन से हो सकता है, इधर इट इज फॉर क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और इट इज फॉर यूटिलिटी। सो आप इधर देखेंगे एक्स एक्सिस पे मैंने एक यूटिलिटी का पैरामीटर लिया है,
और वाई एक्सिस पे क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिया है। ये एक जो है एक डोनाल्ड स्टोक्स का रिसर्च पेपर था 1997 का, उस पर से मैं ये कुछ एक बात सजाना चाह रहा हूँ। और मैं बात ये कह रहा हूँ कि भाई आप अगर प्योर बेसिक रिसर्च की ओर बढ़ रहे हैं तो उससे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती है, लेकिन इसका यूटिलिटी कम है, तो इसको बोर क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर आप भले इसमें से तुम्हारा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अधिक ना बढ़े लेकिन यूटिलिटी बढ़ जाए, तो इसको जो है अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, इसको एडिसन क्वाड्रेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ। लेकिन कोई कोई विरला काम ऐसा होता है जिसमें आपका बेसिक रिसर्च का भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है और उसका यूटिलिटी भी होता है। जैसे लुई पैस्चर ने काम किया, तो उसको जो है पैस्चर क्वाड्रेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपका ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ना कोई काम का हो, ना यूटिलिटी का हो, तो इसको जो है मैं हॉबी रिसर्च कहता हूँ। तो भाई ये जो जिन्होंने रिसर्च लिखा था, तो आप जो भी कर लो, चाहे बोर क्वाड्रेंट में कर लो, पैस्चर क्वाड्रेंट में कर लो या एडिसन क्वाड्रेंट में कर लो, लेकिन ये नहीं करना जिसको कहते हैं हॉबी रिसर्च, है ना। तो अब मैं आता हूं कि एडिसन क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं, और इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, आपके दिमाग में आइडियाज हैं लेकिन आप सिर्फ सोचते रहते हो और कुछ आउटपुट कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो इसको तो डे ड्रीमिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ प्रयास करते भी हो लेकिन वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, एक बार कर लिया हो गया, स्केलेबिलिटी है कि नहीं है सवाल है, तो इसको जुगाड़ कहते हैं। लेकिन मेरे दिल में तो जुगाड़ का बड़ा मतलब अहमियत है। आई लाइक द वर्ड जुगाड़ एंड आई यूज इट इन अ डिफरेंट सेंस, बट देन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द भाव बिहाइंड इट, दैट आउटपुट थोड़ा बहुत है लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है या स्केलेबिलिटी नहीं है, तो इट इज ऑफ लिटिल वैल्यू। आइडिएशन, बट इफ इट डज नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओके, दिस इज वेरी ऑफन, जो हम लोग इसको जार्गन में कहते हैं SISP, विच इज सोल्यूशन इन सर्च ऑफ प्रॉब्लम। तो ये वो होता है कि रिसर्च वाले ने काम कर लिया, कुछ पेपर्स छाप लिए, अब बोलता है कि कौन इंडस्ट्री इसको यूज करेगा। ओके, तो भाई ऐसे नहीं करते हैं, पहले पता करते हैं कि किसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है ये चेंज हो गया। अब आप कोई सोल्यूशन दे भी कि भाई मैंने जो है A को B में कन्वर्ट करने का रास्ता पता कर लिया, चलो बढ़िया है, लेकिन वो इतना महंगा है कि कोई उसको यूज ही नहीं करे, तो ऐसा अनसस्टेनेबल सॉल्यूशंस गो नोवेयर। तो ऐसे जब करते हो तो इट इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन आइडिएटिंग एंड यू आर नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, तो तब जाकर के इसको हॉबी रिसर्च कहा जाता है। तो इसके लिए मेरे जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं इधर, मैं उनको, आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर रिसर्च करो तो लेट इट बी टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड नॉट ओनली हॉबी रिसर्च। ओके, सो ओनली व्हेन यू डू when you solve a problem, it can be of value. Okay, I'll now substantiate this by the story of light bulb. हम लोग जानते हैं कि लाइट बल्ब किसने, मतलब इजाद किसने किया, तो हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन का नाम लेते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि एडिसन के पहले तो 20 लोगों ने जो है इनकैंडेसेंट लैम्प्स पे काम कर चुके थे, लेकिन एडिसन को ही इसका श्रेय दिया जाता है क्योंकि एडिसन एसेंशियली कमर्शलाइज द इन्वेंशन। तो बात तब होती है जब आप इन्वेंशन को कमर्शलाइज करो। अब मैं ये इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम, आई जस्ट, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आई हैव अ लॉट टू कवर एंड आई हैव बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ छोटा मोटा काम करो और बैठे रहो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया आपको तब याद करेगी जब आप उसको कमर्शलाइज करोगे। ओके, तो इसके लिए दिस today is known as the Edison School. Okay, and Edison has been credited to develop the first industrial research laboratory and research commercialization. तो Edison chair is a very important chair. Okay, अब इतने प्रॉब्लम से, इतने चैलेंजेस है इंसान के सामने, चाहे वो, अब आप देख रहे हो इधर ओवर न्यूट्रिशन का कह लीजिए, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम है, तो इधर अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, और ये आप देख रहे हो तो ये मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। अब ये क्या है, दिस इज अ
जेरोप्थैल्मिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का केस है। ओके, देखो तीनों ही फूड से ही रिलेटेड है। जो किसी ने न्यूट्रिशन की बात की ना, प्रिसिशन न्यूट्रिशन, देखो तो यहाँ पे अधिक हो गया, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे खाना तो खाया लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो कोई बात बनी ना। तो ऐसे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन तभी आता है जब आप टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से उसका कुछ सोल्यूशन दो। और ये तब होता है जब आप टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स इफ यू आर एबल टू क्रिएट, तब जाकर के बात बनेगी। इसमें मुझको बहुत सारे केस स्टडीज देने थे, बट आई एम कॉन्शियस ऑफ द टाइम, बट आई स्टिल वांट टू गिव यू at least a few case studies. This is a case of Leo Mavely। मैं ये WhatsApp का तो आप लोग जानते ही होंगे, $19 बिलियन में जो WhatsApp को एक दिन Facebook और ने खरीद लिया। रखेंगे केस स्टडी के लिए। आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक वन सेकंड लेक्चर ऑन केस स्टडी एक्सक्लूसिवली, then they will understand and then interact। True। बट ये मैं आपको बताऊं कि ये देखो, ये लियो मैवली जो है केरला से आया, पूरा इंडिया घूम घूम के आया, लेकिन उसको सब लोगों ने बोला भाई तुमको ये करना है, उसको आगे पढ़ाई नहीं करनी थी, उसको MBA तक नहीं करना था। वो चाहता था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, वो बीटेक बायोटेक पढ़ के आया था केरला से, तो वो चाहता था कि भाई मैं कहीं पे अब पढ़ाई से मन उब गया है, लेकिन मैं जो भी पढ़ा है मैं उसका यूज करूं और मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो किसी के काम आए। तो इसने क्या किया, ये आया गुजरात, आया एक हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आया, और उसने जाकर के एक्सायो बायो सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी बनाई। ओके, अब इसके पास ना आइडिया था, ना टीम था, ना पैसे था, लेकिन जो है गुजरात में उसको धीरे धीरे सब मिलता गया, और हम लोगों ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने इसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपया लगाया। अब आप बैंक में रखोगे 1 करोड़ रुपया, तो डबल होने में, 1 का 2 करोड़ होने में 8 से 9 साल लगते हैं। इसने हमको सिर्फ 5.5 सालों में, 5 सालों में उसने सिर्फ डबल नहीं किया, उसने 7 गुना बना दिया। ओके, तो ये ताकत होती है इवन कमर्शियल बेनिफिट की ताकत। हम लोग इम्पैक्ट तो जानते ही हैं, साइंस के इम्पैक्ट, तो इसका वीडियो वगैरह भी है मेरे पास, लेकिन मैं इसको फिर कभी, जैसे डॉक्टर गोपाल जी ने कहा, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, ये 4 स्टूडेंट्स थे, और 4 स्टूडेंट्स और ये टीचर ने मिल करके जो एक ऐसा सिंपल सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो आज एक C6 एनर्जी के नाम से एक स्टार्टअप है। और जो टीचर थे उनके, डॉक्टर श्री कुमार सूर्य नारायणन, he is now on the board of the students startup। तो ऐसे ऐसे मेरे पास अनेक एग्जाम्पल्स हैं। ये अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो देखो, ये एक स्टूडेंट ड्रॉप आउट ने बनाया हुआ है, और ये एक वेरेबल डिवाइस है, सिर्फ एक इसको उतारा जा सकता है, ये जैसे एक क्लैंप किया हुआ है, बस पेन जैसे एक बैंगल होता है वैसे उसने पहन लिया है। और देखो कैसा कैसा एक्शन में इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। देखो, ये ऐसे बॉल को पकड़ भी पा रहा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये एक 12th के बाद एक स्टूडेंट जो अपनी वेकेशन में बैठे बैठे उसने ये सब बना दिया। देखो, अब ये एम्प्यूटी है, इसका हाथ यहाँ से कट गया था, इसने ये 3D प्रिंटेड, सब इतना सस्ता ये 3D प्रिंटेड हैंड बनाया है। और देखो, इसमें 3 मूवमेंट्स है, आप देख रहे हो कि अंगूठे का मूवमेंट है, रिस्ट का मूवमेंट है, और एल्बो का मूवमेंट है, और 3D प्रिंटेड उसने इस टाइप का बना दिया। और यहां तक कि जो है प्रिसिशन, जो एकदम सटीक काम करना है, वो भी सब वो अच्छे से जो है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है जयेंद्र दीवान का, कमाल की बात ये है, ये जो आप टांग देख रहे हो ना, इसकी जो इस टाइप का प्रोस्थेटिक लिम्ब बोलते हैं इसको, तो ये आज की तारीख में जो बाजार में बिक रहा है वो चाइना का माल बिक रहा है, और ये करीबन 3 लाख से लेके 6.5-7 लाख तक का बनता है प्रोस्थेटिक लिम्ब। अब ये इसने नैनो मटेरियल्स को ले करके और कुछ करके बनाया, और ये आज उसने, ये देखो, ये सरदार जी को पहना के दौड़ा दिया, स्लीपरी फ्लोर पे चला दिया, स्टेयर केस पे चढ़ा दिया,
और ये जो भाई साहब है ये माउंटेनियर है, तो ये जाकर के इन्होंने, मुझ अभी क्लिफ का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई नंबर है K2 10 कुछ ऐसा 12228 ऐसा कोई क्लिफ, वो इस पैर से वो जाकर के चढ़ के आ गए। ओके, ऐसे रोड पे चला करके दिखा दिया। और भाई साहब इन लोगों का जो ये प्रोस्थेटिक लिम्ब है कि इसकी बेचने की कीमत जो है 8,000 रुपीज। तो आप सोचो कहाँ 4.5 lakhs और कहाँ 8,000 रुपीज में ये इसको बेच पा रहा है। तो इस तरीके से उसने कमाल कर दिया। ऐसे बहुत स्टार्टअप्स हैं हम लोगों के जिन्होंने क्या 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 किया है। मैं कहने की कोशिश ये कह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स कैन आल्सो बी क्वाइट प्रॉमिसिंग, सो आई वांट टू इंस्पायर स्टूडेंट्स ओवर हियर दैट you can do some fantastic work, okay, and you have to identify what is the problem, what is the need, where is the solution toolkit, कौन सा solution इसको काम आएगा, तब जाकर के वो टेक्नोलॉजी आइडिया बनता है। और उसके बाद उधर सिर्फ आइडिया आ गया, खत्म नहीं हुआ। यू हैव टू नाउ ensure that there is a proof of concept, there is doability, and you have to ensure that उसका affordability आ रहा है कि नहीं, प्रोटोटाइप दिखाना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आईपी राइट्स लेने पड़ते हैं, फिर ट्रायल्स करने पड़ते हैं, चाहे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चाहे फील्ड ट्रायल्स हो, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, फिर जाकर के कमर्शियल प्रोडक्शन में टेक्नो फिजिबिलिटी बैठता है कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज सस्ती ही हो। अब बताओ कोई वैक्सीन एक सस्ता सा कोई निकाल दे तो तुम लोग खरीदोगे क्या? कोई बोलता है एकदम सस्ते में ऐसा वैक्सीन, तो ये बाजार में बिकता नहीं है। यू हैव टू मेक इट, उसका एक प्राइसिंग का एक अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो उस तरीके से करना होता है। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज इन यूज, ओके। लेकिन मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये इतना लंबा लाइफ साइकिल होता है स्टार्टअप का, इसमें जरूरी नहीं कि तुम ही सारा जगह पे काम करो। There is space for everyone in this ecosystem. You have to find out where is your space, okay? जिसमें इतने सारे एक्टिविटीज हैं अलग अलग टाइप के, और आप देखोगे कि हर जगह पे इस फील्ड में ये काम करता है, इस फील्ड में ये काम करता है, इस फील्ड में ये काम करता है। तो ऐसे अनेक अनेक कामगिरी होती है, और ये सब के लिए हम लोगों का इंक्यूबेटर आपको सपोर्ट करता है। तो हम लोगों का इंक्यूबेटर क्या क्या करता है? आई कम फ्रॉम सावली टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर. We are supported by these number of government organizations and other organizations. And what do? We help, we groom you. आप बीज हो तो बीज से लेके पौधा बनने तक की सारी जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं। हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ओके। जो रिसर्च करते हैं, बाबा ये एक छोटा सा बल्ब है इधर का, लेकिन ये बेसिक टेक्नोलॉजी रिसर्च, लेकिन इसको जब टीआरएल होता है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, तो टीआरएल आपको ऊपर तक ले जाने में लंबा रास्ता है। वी हेल्प यू अक्रॉस दिस वैल्यू चेन. हाउ डू वी हेल्प यू? वी हेल्प यू इन फंडिंग, वी हेल्प यू इन identifying spaces, we help you in technology mentoring and regulatory support, we help you in capacity building and hand holding. अब फंडिंग जो है अलग अलग टाइप का फंड चाहिए होता है, कभी ग्रांट फंड, कभी सीड फंड, कभी इक्विटी फंड, कभी फ्यूचर इक्विटी, कभी आइडिएशन, सीड, ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्री सीरीज ए बी सी, हम सब में हेल्प करते हैं। फिर आपको आइडिएशन स्पेसेस चाहिए हो सकते हैं, इंक्यूबेशन स्पेसेस चाहिए, ब्राउनफील्ड स्पेसेस चाहिए, ग्रीनफील्ड, वी हेल्प यू इन ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे हम आपको हेल्प करते हैं। ये जो है इंक्यूबेटर में इतना सारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, हम ये सब में आपका हेल्प कर सकते हैं। और जो नहीं है उसके लिए हमने एमओयूज कर रखे हैं, तो वहां पर आपको एट कंसेशनल प्राइसेस मिल सकता है। ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने बना रखे हैं, अलग अलग हमारे डिजाइन स्टूडियो, फैब्रिकेशन लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, रिवर्स इंजीनियरिंग सेक्शंस, क्लीन रूम्स, dehumidified biofabrication facility, ऐसे अलग अलग फैसिलिटीज बनाए हैं। एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम एंड विजिट अस at your convenience. We help you through our different programs across, right from ideation, grassroots innovation till acceleration. At all different stages we help. We have this one-to-one mentoring clinics, regulatory clinic, IP clinic, funding clinic. जैसे हमारे ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ एसएनटी, तो इन्होंने हम इनके थ्रू विजिबिलिटी दिलाते हैं। और ये जो है अक्रॉस द वैल्यू चेन में, जो आइडिया से लेके प्रोडक्ट इन यूज, तो कितना कितना फंडिंग चाहिए हो सकता है। तो ये देखो, ये अलग अलग स्कीम्स के थ्रू हम आपको जो है हेल्प कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर
स्टेज। इसमें एक नया आया है, वो है आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप। तो मैं आप लोगों को वो खास तौर पे इनवाइट करता हूँ, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, यू विल गेट टू सी डिटेल्स ऑन आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप। मैं भूल गया, मैं क्योंकि वो बायो E3 के पीछे लग गया, नहीं तो मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था, लेकिन आई होप आई हैव अ स्लाइड ऑन टू इट लेटर ऑन। एंड these are our incubatees. These are some of our graduates, and they are across in different fields. And this is the impact that we have created. Okay, out of 115 incubatees that we have impacted, more than 55 have been supported by one or the other funding. 30 of these startups have entered market, and they have already come up with more than 140 plus products. They have created an employment of 400 plus and have created IP of more than 65. They have created a revenue of 34 crores and valuation is in excess of 450 crores. 3 of them have national awards, number of international recognitions and national coveted schemes. अब मैं तुम लोगों को वो बात बताता हूं जो रिसेंटली हमारे विधानसभा ने जो अप्रूव किया है, और इसमें से एक जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जो बायो E3 जो पॉलिसी है उसके हम लोग जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत क्लोजली काम कर रहा है, और ये हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको अप्रूव किया है, जो बायो मैन्युफैक्चरिंग या GMP फैसिलिटी कहते हैं, तो उसके लिए। और इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल का जो है वो बायो इग्नाइट के नाम से ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, पहला वाला तो छोटा है प्रोजेक्ट, लेकिन ये 300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ये भी सावली में अप्रूव हुआ है, और ये GSBTM इसको आगे लेके जा रहा है। और इसमें इंटीग्रेटेड एनिमल हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी, क्लीन रूम, BSL लैब्स, ब्राउनफील्ड फैसिलिटीज, ये सब आ रहे हैं। इसके अलावा एक और 250 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, जो BSL 4 बायो सेफ्टी लेवल 4 फैसिलिटी आ रहा है, ये गांधीनगर में आ रहा है। और इंशाल्लाह इसका जो है खात मुहूर्त कहते हैं या फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी कहते हैं, जो खड्डा खोद के जो पहली ईंट रखते हैं, वो वाला जो है, इफ एवरीथिंग गोज वेल, ये हम लोग इसी साल के खत्म होने के पहले हम लोग इसको करा पाएंगे। और ये मैं आत्मनिर्भर गुजरात फेलोशिप जो रिसेंटली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव किया है STBI को, इसमें जो स्टूडेंट्स जो है BSc के बाद, MSc के बाद जो है आगे जॉब न लेते हुए अपने आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए फेलोशिप्स है, उनके लिए इनोवेशन ग्रांट है। और सिमिलरली जो PhD करने के बाद एटलीस्ट PhD का थेसिस सबमिट किया, या जो MSc के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है, या बैचलर के बाद 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये सबसे हाईएस्ट, ये कैटेगरी C में फॉल करते हैं, और उनके लिए फेलोशिप भी है, इनके लिए इनोवेशन ग्रांट है, और इनको हम लोग सपोर्ट करने के लिए जो है कमिटेड है। एक और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास से हम अप्रूवल लेके आए हैं, ये पिछले 2 सालों में हम लोग ये 2-3 चीजें अप्रूवल लेके आए हैं, रिसर्च टू रुपीज के नाम से हैं, जो रिसर्च कमर्शियलाइजेशन, इनोवेशन कमर्शियलाइजेशन के लिए। और हम क्या करेंगे, तो हम गुजरात को जो है इस तरीके से अलग अलग इंक्यूबेटर्स के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब, not only incubators but a lot of organizations all over the globe. These are the number of countries whom we are attacking, addressing, where our startups will be able to explore product launches and market penetrations there, customer acquisitions, and so on. We have also been given responsibility of some number of states by ISBA being a regional coordinator. And Dr. Gopalji, I will request your help for Bihar, especially. I know you have been working in number of other states, also Rajasthan and मध्य प्रदेश, बट हमको ये कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। और जैसे आप जानते हैं कि गुजरात में भी हमने कुछ 9 स्पोक्स बनाए हुए हैं, और जहां पर कई जगहों पे जो है डॉक्टर गोपाल जी जाके टॉक्स देते ही हैं। आई एम कॉन्शियस आई एम एक्सीडिंग टाइम, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू विजिट आवर वेबसाइट. इट इज stbi.gujarat.gov.in. You will get to see a virtual tour over here, and in the announcement section you will get to see some newest announcements that have come up, inclusive of a position for project coordinator. As you can see, a lot of positions are vacant, and we are looking forward to increase our team. We have got recent approvals for some number of these schemes, and I'll request Mittal ji or teachers to kindly join our mentors network. You can scan this wala QR code.
those of you who have research projects, and if you think that you want to get your research projects commercialized, I'll request you to join us through this QR code. And students and rest of you, I'll request you to kindly scan this QR code and join our WhatsApp channel. So the same QR code is also given over here, and my contact details are here. So thank you, everyone. It has been such a privilege to be talking to you. But as you see, we have been saying that we are nurturing brighter bio future. So nurturing comes only, it is a tough job. It requires giving long hours, patiently, sustained efforts, which is what we are committed to. So I again thank all of you for your patient listening, and thank Dr. Gopal ji for inviting me.